Hello students, welcome to Sriji Public School online classes, and in today's lecture we shall cover the difference between partnership and cooperative society in second chapter, that is forms of business organization in 11th business studies. So let's start the differences one by one. The first difference between partnership and cooperative society on the basis number of members. As we earlier discussed, in case of partnership, in 2013 Act, if you talk about maximum and if you talk about minimum number of members or partners, we can say in case of partnership is 2. I repeat, minimum number of partners in case of partnership is 2. And if you talk about maximum, in 2013 Act, it was decided that a maximum 100 members or partners may be there, but it was left upon the government decision time to time to fix the maximum number of partners in case of partnership. And in 2014 Act under section 10, it was decided by government that maximum partners can be 50. So overall, as conclusion, we can say that in partnership minimum 2 partners and maximum 50 at present may be there. So minimum 2 partners may be there and maximum 50 may be there in case of partnership. And if we talk about cooperative society, under Cooperative Society Act 1949, the minimum members to form a cooperative society is 10. 10 members are required to form a cooperative society at least. And if we talk about maximum number of members in case of cooperative society, that is unlimited. Up to any extent members may be there in case of cooperative society. There is no limit of maximum number of members in case of cooperative society. I repeat, very simple, minimum 2, maximum 50 in case of partnership, and minimum 10, maximum no limit. And the second basis of differences is benefits. Partnership is beneficial for partners only. All profits are distributed in the partners only. All activities are based around the partners only. Benefit for the partners. Other than partners, there is no special benefits. But in case of society, society is beneficial for members as well as non-members. Like if we talk about consumer cooperative societies, तो वहां से जो प्रोडक्ट्स वगैरह है मेंबर्स भी खरीद सकते हैं, नॉन मेंबर्स भी खरीद सकते हैं. वो अलग बात है कि भी शॉर्टेज के केस में मेंबर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, नॉन मेंबर्स को मना कर दिया जाएगा उस केस में. बट बेनिफिशियल है उनके लिए भी जो नॉन मेंबर्स हैं सोसाइटी में. तो आई रिपीट दिस पॉइंट, बेनिफिट्स. पार्टनरशिप इज बेनिफिशियल ओनली फॉर पार्टनर्स, but society is beneficial for members of society as well as for non-members of society. We can say to general public, society is also beneficial. And if we talk about third basis of differentiation, that is business. Partnership form of business is established to run a business. Mean to say business is compulsory. Without having any business, the relations between the persons cannot be called a partnership. So some business must be there. Business, existence of business is compulsion in case of partnership. But in case of society, there is no compulsion of any business. Like housing cooperative society, no business is there. Like farmers society, no business is there. So there is no compulsion of any business. Without having business, society may be run, but without any business, partnership cannot be run. Business is compulsory in case of partnership. And if we talk about next basis, that is registration. In partnership, registration is optional, not compulsory. It's optional. It depends upon the partners whether they get their firm registered or not. Without registration, they can also run the partnership. But in case of society, cooperative society, registration of cooperative society is compulsion. Without registration, cooperative society cannot be run. So these were the difference. Let's revise it again very shortly. Number of members, minimum 2, maximum 50 members may be there. In case of society, minimum 10, maximum there is no limit. Benefits, partnership is beneficial for partners only, but cooperative society is beneficial for members as well as for non-members of society. But next point,
business. In case of partnership, existence of business is compulsory. Without business, partnership cannot be run. But in case of cooperative society, it's not compulsory to have any business. Without any business, society can be run. And the last point of difference is registration. In case of partnership firm, registration is compulsory. Registration is optional. There is no compulsion for registration. But in society, registration is compulsory. Question number 20. Question is, what do you mean by company? Explain the features of company. What is company? You can say company is an artificial person created by law, having separate legal entity or separate legal existence, a perpetual succession and a common seal. That type of organization is known as company. So let's read it out. Company is an artificial person having separate legal existence or entity, we can say, परपेचुअल सक्सेशन एंड एक कॉमन सील. क्या मतलब निकला? क्योंकि कंपनी एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, अपने मेंबर्स से अलग एग्जिस्टेंस है. अपने नाम से कंपनी असेट्स वगैरह बाय करती है, खरीदती है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो अलग एग्जिस्टेंस है. परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंपनी चलती रहती है, स्थायी अस्तित्व है इसका, मेंबर्स के आने जाने, डेथ, इंसॉल्वेंसी का इसकी लाइफ पे कोई असर नहीं है, तो इसकी परपेचुअल सक्सेशन है, स्थायी अस्तित्व है. एंड ए कॉमन सील. कंपनी की एक कॉमन सील होती है, स्टैंप होती है, जो कंपनी के सिग्नेचर्स का काम करती है. हर एक जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर वो कॉमन सील कंपलसरी होती है लगनी. तो ये डेफिनेशन या मीनिंग निकाल सकते हैं. इसमें से फीचर्स भी 3 फीचर्स कवर हो रही हैं. So let's read it out again. Company is an artificial person having separate legal entity or existence, perpetual succession and a common seal. And next, let's we discuss about the features of company. The very first feature of a company is separate legal existence. As we earlier discussed in the meaning, company have a separate legal existence from its members, from its owners, we can say. Who are the owners of company? Shareholders, especially equity shareholders. Shareholders are called the owners of company, and company have a separate legal entity or separate legal existence from its members. Company run business by its own name. Company can buy assets by its own name. Company can enter into contracts or agreements with outsider by its own name. There is no relation with the owners of company, that is shareholders. Company do all the things with its own name. So it is a separate entity from its members. क्या मतलब निकला? कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो अपने ऑनर्स से अलग है. ऑनर्स कौन है? कंपनी के शेयर होल्डर है. कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो शेयर होल्डर से अलग है. कंपनी सब कुछ करती है अपने नाम से करती है, ऑनर्स के नाम से नहीं करती. तो कंपनी जो भी बिजनेस रन करेगी, एसेट्स वगैरह बाय करेगी, खरीदेगी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी किसी बाहर वाले व्यक्ति के साथ या दूसरी कंपनी के साथ, तो कंपनी सब कुछ अपने नाम से करेगी, ना कि ऑनर्स के नाम से. सो कंपनी हैव ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. कंपनी का एक अलग अस्तित्व है, अलग पहचान है, कह सकते हैं कंपनी की अपनी अलग से. नेक्स्ट फीचर इज आर्टिफिशियल पर्सन. Company is an artificial person created by law. It's not a natural person like human beings like us. तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है, कानून द्वारा बनाई गई. ये कोई जीता जागता मनुष्य की तरह नहीं है, मतलब जीते जागते मनुष्य की तरह नहीं है, ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं है. कंपनी का एक अलग से आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई फिजिकल बॉडी नहीं है इसकी ह्यूमन बींग्स की तरह. जो शेयर होल्डर्स चुनते हैं जिन मेंबर्स को, वो कंपनी को मैनेज करते हैं, ऑपरेट करते हैं, जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाना जाता है. तो कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है. तो रीड इट आउट. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, डजंट हैव एनी फिजिकल बॉडी लाइक अस और लाइक ह्यूमन बींग्स वी कैन से. तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई नेचुरल पर्सन नहीं है. इट्स डोंट हैव एनी फिजिकल बॉडी लाइक अस, जो हमारी तरह कोई शरीर नहीं है इसका. इट्स ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो जो भी एक्टिविटीज हैं, वो ऑपरेशंस हैं, वो इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं, जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है. सो कंपनी इज नॉट ए नेचुरल पर्सन, इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन. नेक्स्ट फीचर रजिस्ट्रेशन.
registration of company is compulsory. Without registration, any company cannot come into existence. Registration is compulsory. Registration can be done according to the Act 2013 provisions given in the Act of 2013. और जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड कंपनी है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगी कौन सी एक्ट के अंडर, इससे पहले जो था 1956 वाले जो प्रोविजंस थे, तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑलरेडी जो कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड होंगी। अब जो कंपनी बनेगी वो कंपनीज एक्ट 2013 के जो रूल्स हैं प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन उनका होगा। सो रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर ऑल कंपनीज। इट कैन बी डन अंडर कंपनीज एक्ट 13 और वी कैन से ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी विल हैव ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू एक्ट फॉर्मर एक्ट वी कैन से 1956। विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। क्या मतलब निकला, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती, अस्तित्व में नहीं आ सकती। कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है, या ऑलरेडी जो कंपनीज हैं पुरानी 2013 से पहले की जो चली आ रही है उनका जो रजिस्ट्रेशन है तो एक्ट जो 1956 था पहले 13 वाले से पहले उसके अकॉर्डिंग उनका रजिस्ट्रेशन होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी नहीं चल सकती। सो दीज वर द फीचर। लेट्स क्विकली, कंपनी का मीनिंग क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separate legal entities, perpetual succession and common seal। ये कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कानून द्वारा बनाई गई, इसका अपना अलग अस्तित्व है, एक स्थायी अस्तित्व है, सेपरेट अपने मेंबर से अलग अस्तित्व है, स्थायी अस्तित्व है, कंपनी के मेंबर्स आते जाते रहते हैं, कंपनी चलती रहती है, अपनी एक कॉमन सील है, स्टैंप है जो सिग्नेचर का काम करती है। फीचर्स में क्या था, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो अपने मेंबर्स से अलग है, कंपनी अपने नाम से सारी डीलिंग करती है, सारी एसेट्स वगैरह करती है, मेंबर से कोई लेना देना नहीं है। आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इट डजंट हैव एनी फिजिकल एक्शन। ये आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई फिजिकल बॉडी नहीं है ह्यूमन बींग्स की तरह। इसका जो मैनेजमेंट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, एक्टिविटीज का वो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनको हम बोलते हैं वो करते हैं। तो ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। और लास्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है सभी कंपनीज के लिए, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, या ओपीसी हो। ओपीसी मीन वन पर्सन कंपनी, तो सभी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और रजिस्ट्रेशन 2013 वाले एक्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है, या ऑलरेडी जो पहले से कंपनी है उनका 1956 वाले एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन होगा, तो कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन। फोर्थ फीचर ऑफ कंपनी इज परपेचुअल सक्सेशन। Company have a continuous existence. Death, insolvency, incapacity or incapability of shareholders doesn't affect the life of company. Company goes forever. Members may come, members may go, but the company goes forever. तो ये है कि कंपनी की जो लाइफ है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, कंपनी चलती रहती है। मेंबर्स की डेथ का, मीन टू से ओनर्स और वी कैन से शेयर होल्डर्स की डेथ का, उनके इंसॉल्वेंट होने का, उनकी इनकैपेसिटी का, इनकेपेबिलिटी का, तो कंपनी की लाइफ पे या एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर होल्डर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कंपनी चलती रहती है हमेशा के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी की लाइफ पे। सो लेट्स चेक इट आउट। कंपनी हैज ए कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस। Death, insolvency, incapability or incapacity we can say of members does not affect the existence of company। तो कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो कंटिन्यूस है, लगातार चलता रहता है। किसी शेयर होल्डर्स की डेथ से, इंसॉल्वेंसी से, इनकेपेबिलिटी से, मेंबर्स या शेयर होल्डर्स वी कैन से, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड ओनली लॉ कैन ब्रिंग एन एंड टू कंपनी। तो कंपनी कानून से निर्मित होती है और कानूनी प्रक्रिया द्वारा, प्रोसेस के थ्रू ही इसको खत्म किया जा सकता है, कंपनी को बंद किया जा सकता है। तो मेंबर्स के आने जाने से कंपनी बंद नहीं होती, चलती रहती है। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज फॉर एवर। मेंबर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कंपनी हमेशा के लिए चलती रहती है। सो नेक्स्ट फीचर इज कॉमन सील। Company is not a natural person. Company is an artificial person. So, being not a natural person, it cannot do signatures like human being. जैसे हम लोग सिग्नेचर करते हैं, तो कंपनी सिग्नेचर नहीं कर सकती क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग नहीं है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। It have a common seal which act as signature of company.
कंपनी की एक अपनी कॉमन सील होती है, स्टैंप होती है, सिग्नेचर स्टैंप वी कैन सी which act as signature of company. It's compulsory to have common seal on all the legal documents of company. कंपनी के सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स पे कंपनी की कॉमन सील या स्टैंप को लगनी जरूरी है। तो पढ़ते हैं इसको। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन सो इट कैंट मेक साइन या सिग्नेचर लाइक ह्यूमन बीइंग्स. It has a common seal, signature stamp we can say, which act as signature of company. It's compulsory to have common seal on all legal documents of company. तो ये कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, साइन कर नहीं सकती। कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है, सिग्नेचर स्टैंप होती है, जो कि लीगल जो डॉक्यूमेंट्स उन पे लगी होती है, कंपनी के सिग्नेचर का वो काम करती है। नेक्स्ट फीचर इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. Company's shares are freely transferable from person to person. These can be sold or bought between the shareholders. So company's securities are freely transferable. Let's check it out. Capital of company is divided into small parts. Each part is called share. What is share? कंपनी की जो टोटल कैपिटल है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हर एक पार्ट को शेयर बोलते हैं। जैसे किसी कंपनी की टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए हो और 100 रुपए का एक शेयर में बांट दे उसको, तो 1000 शेयर्स हो जाएंगे। हर एक जो 100 रुपए का जो पार्ट है उसको शेयर बोलेंगे हम। तो कंपनी कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर. शेयर्स ऑफ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. दीज कैन बी बॉट एंड सोल्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, एक आदमी से दूसरे आदमी को खरीदा बेचा जा सकता है शेयर्स को। उनको गिरवी भी रखा जा सकता है लोन वोन लेने के लिए, लाइक किसी के नाम वसीयतनामा भी कराया जा सकता है, लीगेसी कराई जा सकती है। तो ये शेयर्स जो हो ट्रांसफरेबल है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है. एंड लिमिटेड लायबिलिटी. नेक्स्ट फीचर 7th इज लिमिटेड लायबिलिटी. Liability in case of company is limited. Shareholders have a limited liability up to the capital contribution. They need to pay only the value of their shares. Nothing more than that value can be held from shareholders. Their personal assets cannot be used in case of losses with the company. So company के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है. एक शेयर होल्डर ने जितने शेयर ले रखे हैं उन शेयर्स की वैल्यू देने तक की उनकी लायबिलिटी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कंपनी उनसे मांग सकती. लॉसेज के केस में उनकी पर्सनल एसेट्स को यूज नहीं किया जा सकता. सो चेक इट आउट. लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड अप टू देयर कैपिटल ओनली. पर्सनल एसेट्स ऑफ शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ लॉसेज. फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन हैज बॉट 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. 1000 शेयर खरीद रखे हैं, 100 रुपए का एक है. Then his liability to pay to company is only ₹10,000. तो 10,000 रुपए की उनकी लायबिलिटी बनेगी 1000 गुना 10 के हिसाब से. Nothing more than 10,000 can be called from that person. तो उस पर्सन से या उस शेयर होल्डर से कंपनी 10,000 से ज्यादा नहीं मांग सकती. सो लिमिटेड लायबिलिटी है यहाँ पे. जितने शेयर लेंगे उतने ही लायबिलिटी देनी बनेगी, उससे ज्यादा नहीं कुछ देना पड़ेगा. And the very last feature is separation of ownership and control. Who are the owners of company? Shareholders are the owners of company. And who manages the company? Board of directors manages the company. These are separate things. Shareholders are the owners. They don't have any involvement in management and control. And management, or we can say board of directors, manages all the things, control the company. So there is a separation of ownership and control. क्या मतलब निकला? क्योंकि कंपनी के जो ओनर्स हैं वो तो शेयर होल्डर्स हैं, और कंपनी को मैनेज कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं. तो दोनों अलग अलग हैं. ये नहीं है कि ओनर्स यानी कि शेयर होल्डर ही कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं. और तो सेपरेट यहाँ पे ओनरशिप और मैनेजमेंट है. सो लेट्स चेक इट आउट. ओनर्स ऑफ कंपनी या शेयर होल्डर, बट शेयर होल्डर डू नॉट कंट्रोल कंपनी. तो ओनर्स जो है वो शेयर होल्डर है, लेकिन शेयर होल्डर कंट्रोल नहीं करते कंपनी को. कंट्रोल करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं. कंपनी इज कंट्रोल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो देयर इज सेपरेट ओनरशिप एंड कंट्रोल. तो अलग है, ओनरशिप अलग है, ओनर शेयर होल्डर्स होते हैं, कंट्रोल अलग है, कंट्रोल करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं.
तो ये फीचर्स थी, इनको एक बार अगर क्विकली इन पांचों को, परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस है, डेथ इंसॉल्वेंसी वगैरह से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंबर्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, कंपनी चलती रहती है। कॉमन सील, कंपनी नेचुरल पर्सन तो है नहीं जो साइन कर सके, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी अपनी कॉमन सील होती है जो सिग्नेचर का काम करती है, सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स पे वो कॉमन सील लगी होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कंपनी की जो टोटल कैपिटल है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड होती है और एक पार्ट को शेयर बोलते हैं। शेयर्स कंपनी के फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, इजिली वो एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर हो सकते हैं, उनकी सेल परचेज हो सकती है, तो ट्रांसफरेबल है शेयर्स। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, जो जितने शेयर खरीदेगा केवल उतने ही पैसे उसको कंपनी को देने पड़ेंगे, उससे ज्यादा 1 रुपया भी कोई किसी शेयर होल्डर से नहीं मांग सकता, तो उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, शेयर्स तक की उनकी लायबिलिटी बनेगी। लॉसेज के केस में पर्सनल एसेट्स उनकी नहीं यूज हो सकती। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, ओनर्स अलग हैं, शेयर होल्डर्स हैं, और कंट्रोल करने वाले अलग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो ओनरशिप और जो कंट्रोल है वो सेपरेट रहता है, अलग रहता है, कोई एक दूसरे में इन्वॉल्वमेंट नहीं है ओनरशिप और कंट्रोल की। थैंक यू वेरी मच।